Hello students, good morning. Welcome to Nauka Digital Institute. I am your maths teacher Dhaval Thakkar. So friends, today we are going to start unit number 10 from our NCERT exemplar book, which is direct and indirect proportion. So let's see what is direct and indirect proportion. Main concepts and results are given in first of all. Two quantities x and y are said to be direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant. It means the ratio means first quantity suppose is x and second is y, then the ratio of x and y is constant where k is a positive number. It means if first quantity x increase, then second quantity y is increase in this much proportion. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि दो क्वांटिटी अगर हम कोई भी ले लेंगे तो उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सामने दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होनी चाहिए. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सामने दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज होनी चाहिए ताकि वो दोनों का जो रेशियो है x अपन y वो कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, इफ x and y are in direct proportion or very directly. In case of direct proportion, if y1 and y2 are the values of y and corresponding value to the x1 and x2 of x respectively, then we can write the equation for the direct proportion is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, when two quantities are given and they are in direct proportion, then equation for that is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Or we can write it like that also, x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. ओके, ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं कि x1 upon x2 is equal to y1 upon y2 by cross multiplying here x2 and y1. ओके, सो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दो क्वांटिटी हमें इतना याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट इज टू क्वांटिटी x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x cause proportional decrease in y and vice versa. If x increase and y decrease, or we can say if y increase and x decrease, so such quantity are said to be in the in indirect proportion. Okay, in such a manner that the proportion of their corresponding values remain constant. So we can write like x into y is equal to k, where k is a positive number. If x and y in inverse proportion, in this case y1 and y2 are the value of y corresponding the values x1 and x2 of x respectively, then we can write like x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2. Okay, clear? So these are the equations for direct proportion, and now let's see the equation of indirect proportion. x1 into y1 is equal to x2 into y2.
So in indirect proportion we can write it like this also, x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. It means the meaning of direct proportion is like this also, x is directly proportional to y. It means if x increase then y increase, if x decrease then y decreases. Okay, and for indirect proportion we can write it like this, x is inversely proportional to y. This sign is called proportional to. So x is directly proportional to y, then x increase, y increase, x decrease, y decrease, and if x is inversely proportional to y, then x increase, y decrease, x decrease, y increase. Okay, so these are the equations and logics of quantities are in direct proportion and indirect proportion. So let's have some solved examples. The statement which I have written is here already in your book. Solved example. In example 1 to 3 there are 4 options, out of which one is correct. Choose the correct one. Answer is already given, but we will understand how. If x and y are in direct proportional, then x is equal to 13 and y is equal to 39. So if x and y are in direct proportional, then x upon y is equal to k, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए. Here x is equal to 13 and y is equal to 39. So x upon y, 13 multiply 1, 13 multiply 3. Answer 1 upon 3. Okay, so which of the following is not a pair possible of the corresponding value of x and y? x and y की कौन सी वैल्यू के लिए x अपॉन y जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे. ओके, सो हियर डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 3. सो 1 and 3 द रेशियो विल बी 1:3, यानी 1/3. तो ये तो रहेगा. 17 and 51 is another pair. (17 multiply 1 and 17 multiply 3). So here also the ratio is 1/3. So they can be possible pair. Now see 30 and 10. So for 30 and 10, (30 upon 10) 0 0 cancel, 3 upon 1. So here the ratio is 3/1, which is not equal to 1/3, and the last one is 6 and 18. वो भी चेक कर लेना चाहिए. कभी कभी हमें ऐसे भी ऑप्शन दिए होते हैं कि C and D, कोई एक ही ऑप्शन आंसर में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिलेगा 1/3. सो द ओनली पेयर 30/10 shows that x and y ratio of x and y is different than other
3. So the answer is C. Okay. Next, a car covers a distance 40 meter with an average speed of 60 km per hour. The average speed to cover the same distance in 30 minutes. Okay, so here an example is given like a कार है एक जो 40 मिनट में 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उतना ही डिस्टेंस अगर हम स्पीड बढ़ा दें, ओके, तो ही 30 मिनट में कवर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हमें टाइम कम दिया गया है, द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। तो इफ टाइम रिड्यूसेस देन स्पीड मस्ट बी इंक्रीजेज। ओके, तो ये जो प्रपोजन है वो एक इनडायरेक्ट प्रपोजन होगा कि टाइम स्पीड जब भी कम होगी तब टाइम बढ़ रहा है, एंड स्पीड जब भी ज़्यादा होगी तब भी टाइम कम हो रहा है। सो हियर वी विल टेक two quantities x as the speed, y as a time. So if x increase, y decrease, and if x decrease, y increase in the case of speed and time. So here it is indirect proposition. So x1 and x2, x1 is given 60 km per hour and we have to find the x2. y1 40 minutes and y2 30 minutes. So the solution for indirect proposition is x1 into y1 is equal to x2 into y2. So x1 is equal to 60, y1 is equal to 40 is equal to x2 we have to find out, and sorry, y2 is given 30 minutes, not question marks. So to find x2 we have to divide both the side by 30. So 60 multiply 40 divide by 30, 0 0 will cancel out, and 3 multiply 2 is 6. So the answer of x2 2 multiply 40 is equal to 80 minutes. Sorry, 80 kilometer per hour is the speed, not minutes. So if we increase the speed from 60 km per hour to 80 km per hour, we can cover the same distance in less time, it means in 30
minutes. So this is the sum of indirect proportion, and we can find answer like this. Third one, which of the following is in direct proportion? So we know that in direct proportion, if one quantity increase, then other quantity also increase with the सेम proportion. एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी ही चाहिए. वन साइड ऑफ क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो क्यूबॉइड का साइड इंक्रीज होने के साथ सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा, वो क्यूब में बढ़ रहा है, सॉरी क्यूबॉइड में बढ़ रहा है. तो आंसर यहाँ पे जो है वो ए में नहीं मिलेगा, बी में देखते हैं. स्पीड ऑफ व्हीकल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो अगर स्पीड हमारा बढ़ेगा तो उसके साथ व्हीकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज़्यादा कवर करने वाला है. सो ऑप्शन बी आएगा हमारा आंसर. सी में हमें दिया है चेंज इन वेट एंड हाइट अमॉन्ग इंडिविजुअल. तो वो कोई फिक्स प्रपोजन में नहीं रहता कि कभी कभी हाइट पहले नहीं बढ़ती, वेट बढ़ रहा है, उसके बाद हाइट बढ़ती जा रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है. तो ये सब हमारे ऑप्शंस में ऐसा आंसर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में नहीं आएगा. ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में नहीं आएगा. सो नेक्स्ट इज डी, नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल अ टैंक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक. तो जितने नंबर ऑफ पाइप्स ज़्यादा हो गए, टाइम उतना कम चाहिए. तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट प्रपोजन हो जाएगा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो ये हो गए हमारे सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3. नाउ इन 4 to 6 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. स्टेटमेंट हमें ट्रू बनाना है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोजन में से कौन सा प्रपोजन होगा वो आइडेंटिफाई करके हमें आंसर में लिखना है. अमृता टेक्स 18 आवर्स टू ट्रैवल 720 किलोमीटर्स. टाइम टेकन बाय हर टू ट्रैवल 360 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का यहाँ पे हमें क्वांटिटी दिया गया है. तो अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, एंड टाइम अगर हमारे पास कम होगा तो हम कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें x जो है वो क्वांटिटी है टाइम, एंड y क्वांटिटी है डिस्टेंस. अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा. इट मीन्स क्वांटिटी आर सेड टू बी इन डायरेक्ट proportion. Okay, the value of x time 18 hours x1, x2 हमें फाइंड करना है कि भाई कितना टाइम दूसरी बार में लग सकता है. y1 यानी कि जब 18 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है 720 किलोमीटर्स. एंड y2 हमें दिया गया है अगर 360 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं तो उस टाइम पे टाइम कितना लगेगा. तो एज आई सेड एंड वी हैव अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट proportion. सो in direct proportion x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, here we have to find x2. So 18 hours to 720 kilometer
So x2 upon 360. We have to find x2, so we have to send 360 to the opposite side and multiply with 18. So x2 is equal to 18 multiply 360 divided by 720. 0 0 divide 36 2 is 72 and 2 9 is 18. So x2 is equal to 9 hours. Okay, so answer is 9 hours. Next, if x and y are inversely proportional, then dash is equal to constant. So we have seen that x into y are in constant. Okay, इसके लिए तो कोई मेथड करने की ज़रूरत है नहीं. Side of rhombus and its perimeter are in direct proportion. Okay, why is like that? If size of rhombus is increased, then perimeter will also increase. Side अगर 5 सेंटीमीटर है तो रोम्बस का पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 5 20 आंसर आएगा. साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो रोम्बस का जो पेरीमीटर है उसका इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई एल इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 6 24 आंसर आएगा. तो साइड बढ़ेगा उसके साथ पेरीमीटर भी बढ़ेगा. सो दिस क्वांटिटीज साइड ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर्स आर इन डायरेक्ट proportion. Okay, next, when two quantities are in inverse proportion, then x upon y is constant. This statement is false because when two quantities are in direct proportion, not inverse, in direct proportion x upon y is equal to constant, and when they are in inverse proportion x multiply y is equal to constant. Okay, next, if the cost of 10 pencil is rupees 90, then the cost of 19 pencil is 171. So अगर पेंसिल बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम फाइंड कर लेते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो पहले 10 है, तो 10 पेंसिल के रुपीज़ हो रहे हैं 90, और उसके बाद पेंसिल्स हो रहे हैं 19, तो कॉस्ट हमें दिया है 171. तो प्रपोजन देख लेते हैं कि x1 अपॉन y1 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन 9, और यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई 1 एंड 19 मल्टीप्लाई 9 19 cancels, so here answer is also 1 upon 9. Okay, so the statement is true. Next, if 5 person can finish a job in 10 days, then 1 person can finish it in 2 days. ये तो गलत हो जाएगा. 5 बंदे मिलके भी जो काम 10 दिन में कर रहे हैं वो एक बंदा 2 दिन में कैसे कर पाएगा? तो ये हमारा आंसर गलत है. ओके, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ पर्सन एंड जॉब टू फिनिश ये जब भी क्वांटिटीज़ हमारे आएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे इन्वर्स प्रपोजन में. सो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हम लेते हैं 5 एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 10 days. सो इफ 1 person, then time required is how much?
ओके, तो ये तो हमें आंसर मिलेगा 50। Five person can finish job in 10 days, then one person will finish the same job in 50 days, not 2 days। यहाँ पे x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 अगर आपने डायरेक्ट प्रपोजन कंसीडर कर लिया तो आपका आंसर आ सकता है 2 days, पर यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोजन में नहीं है ये क्वांटिटीज, इनडायरेक्ट प्रपोजन में है। ओके, द स्काउट कैंप there is a food provision for 300 cadets for 42 days if 50 more person join the camp। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, 300 लेते हैं और उसके बाद 50 लेते हैं, पर 300 कैडेट्स एंड 50 कैडेट्स यहाँ पे नहीं है क्वांटिटी, यहाँ पे 300 कैडेट्स है, उसमें 50 ऐड हुए हैं। ओके, सो 300 प्लस 50 यानी कि 350 हो जाएगा। तो पहली क्वांटिटी जो है x वो कैडेट्स है और दूसरी क्वांटिटी जो है y वो है फूड प्रोविज़न। तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैडेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे फूड प्रोविज़न है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए तो ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, कम लोग हो गए तो कम खाना चाहिए। तो जो ज़्यादा लोग हैं यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैडेट्स बढ़ेंगे तो जो फूड प्रोविज़न है, अगर ज़्यादा खाना चाहिए तो प्रोविज़न है वो उसके जो डेज है वो कम होते जाएंगे। ओके, सो इफ़ x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज, तो ये जो क्वांटिटी है वो इनडायरेक्ट प्रपोजन हो जाएगी। ओके, तो जो x1 है वो हो जाएगी 300 कैडेट्स, x2 जो है वो हो जाएगी 300 कैडेट्स पहले से है, उसमें 50 और ऐड हो रहे हैं, तो 50 नहीं लेने हैं, 300 प्लस 50 यानी कि 350 लेना है हमें। y1 पहले 42 डेज, तो y2 अब खाना 50 कैरेट्स बढ़ जाने के बाद खाना कितने दिन तक चलने वाला है। सो फॉर इनडायरेक्ट प्रपोजन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सो x1 इज 300 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई y2 तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे, 7 6 7 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 6। सो आंसर ऑफ y2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 36 इज द फाइनल आंसर। इट मीन्स अगर 50 आदमी बढ़ जाएंगे, 50 कैरेट्स बढ़ जाएंगे, तो जो खाना पहले 42 डेज़ के लिए हमारे पास प्रोविज़न था वो हो जाएगा 36 डेज़ के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट प्रपोजन का यूज़। नेक्स्ट इज, आगे देखते हैं हमें क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 11 में। इफ़ टू कार्डबोर्ड बॉक्स ऑक्यूपाई 500 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस, देन हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू कीप 200 सच बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे दो कार्डबोर्ड है, वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सॉरी, तो ऐसे 200 बॉक्सेस है, तो हमें कितना स्पेस चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए, तो एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, एंड अदर इज स्पेस ऑक्यूपाइड। सो नंबर ऑफ बॉक्स अगर 2 है तो जो स्पेस चाहिए वो चाहिए
500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 200 है तो हमें स्पेस कितना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे x लिया है। यही चीज़ आप पहले हम जैसे कर रहे थे वही मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए x1, यहाँ पे ले लीजिए y1, ये लीजिए x2 और ये लीजिए y2। तो ये मेथड से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है वो मेथड से भी आप कर सकते हैं। सो डायरेक्ट प्रपोजन में है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो 2 अपॉन 500 इज इक्वल टू 200 अपॉन x। यहाँ पे हमारा जो y2 है वो उन्होंने टेक्स्ट बुक में x लिया है जो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है। 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 500 के साथ 200 मल्टीप्लाई होगा। सो 2 multiply x, 2x is equal to 500 multiply 200. Now we want to find x, so we have to divide by 2 to both the side of equal to. So 2x divided by 2 is equal to x, and 500 multiply 200 divided by 2 is equal to 2 multiply 1 यानी कि 100। हमें 200 आंसर मिलता है तो बचेगा 500 मल्टीप्लाई 100 विच इज़ 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। Thus the required space is 50,000 cubic centimeters. Okay, next, under the condition that temperature remain constant, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसी एक कंडीशन है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे तो दे ही दिया है आपको क्वेश्चन में ही कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एंड वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 630 क्यूबिक सेंटीमीटर, द प्रेशर इज 360 millimeter of mercury, then what will be the pressure of the gas if its volume is 720 cubic centimeter at the same temperature। तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे जिस तरीके से दिया है वो तरीके से भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 और ये वॉल्यूम हो गया हमारा x2, ये y1, तो ये हो गया y2। और एज वी नो द क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो x1 इंटू y1 is equal to x2 into y2, which is the equation for indirect proportion. So 630 multiply 360 is equal to 720 multiply x, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 315। ओके, therefore the pressure required is 315 millimeter of mercury। तो ये दो सम है जो वर्ड प्रॉब्लम की 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं एज अ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, आपको पहले कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है वो आइडेंटिफाई करनी है। क्वांटिटीज़, एक क्वांटिटी बढ़ने के साथ दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो आपको डिसाइड करना है, और उसके बाद डायरेक्ट प्रपोजन या इनडायरेक्ट प्रपोजन वो डिसाइड करके उसका इक्वेशन आपको रखना है। ओके, यहाँ पे हमें दिया है कि इफ़ टाइम t इज़ रिक्वायर्ड टू डाउनलोड अ 4 मेगाबाइट म्यूजिक फाइल फ्रॉम एन इंटरनेट music seller is inversely proportional to the rate at which data is transferred to the receiving computer। डेटा जितनी फास्ट ट्रांसफ़र होगा टाइम उतना कम लगेगा, और डेटा जितना स्लो ट्रांसफ़र होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ओके, डेटा कितना ट्रांसफ़र करना है, 4 मेगाबाइट ट्रांसफ़र करना है। ओके, इफ़ द ट्रांसमिशन अकर्स एट द रेट ऑफ 2.5 मेगाबाइट्स पर मिनट। ओके, हाउ लॉन्ग द ट्रांजिशन। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डाउनलोड 4 मेगाबाइट फाइल इफ द ट्रांसमिशन रेट इज 2.5
मेगाबाइट पर मिनट। तो यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन है हमारी पहली क्वांटिटी एंड दूसरी क्वांटिटी है साइज ऑफ फाइल। ओके, रेट जो है वो है 2.5 मेगाबाइट पर मिनट। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो फाइल डाउनलोड हो सकती है वो है 2.5 मेगाबाइट यानी कि MB। ओके, तो हमें यहाँ पे पहले दिया है x1 इज इक्वल टू 4 मिनट, सॉरी x1 इज इक्वल टू 2.5 MB, y1 इज इक्वल टू 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप पहले 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 मेगाबाइट के लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हमने उसको बाद में लिखा है और पहले जो रेट दिया है 2.5 मेगाबाइट पर मिनट उसके ऊपर से हमने x1 और y1 डिराइव किया है। ओके, सो x1 इज इक्वल टू 2.5 मेगाबाइट, देन y1 इज इक्वल टू 1 मिनट। इफ x2 इज इक्वल टू 4 megabyte, then find y2. So if x1 increase, y1 increase, x2 sorry, if x increase then y increase, ज़्यादा डेटा अगर हमें डाउनलोड करना है तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन So for direct proportion x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So 2.5 upon 1 is equal to 4 upon y2. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 multiply y2 is equal to 4 multiply 1, y2 is equal to 4 divided by 2.5 और 4 डिवाइड बाई 2.5 का आंसर हमें मिलेगा 4/25 मल्टीप्लाई बाय 10 और इससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 मल्टीप्लाई 400, 4 4 ज़ा 16 एंड 10 कैंसर 1.6 आंसर हमें मिलेगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो। ओके, सो टाइम रिक्वायर्ड to download 4 MB file is 1.6 minutes. Okay, now the next is how long if transmission rate is 0.8 megabyte per minute। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ट्रांसमिशन रेट जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, 0.8 हो रहा है फॉर द नेक्स्ट केस। जीरो 0.8 मेगाबाइट पर मिनट का मतलब होगा कि x1 0.8 मेगाबाइट तो y1 जो है वो 1 मिनट, 0.8 मेगाबाइट पर मिनट वो हमारा रेट है। सो x2 अगर जो है वो तो हमारा फिक्स है कि भाई 4 MB तो डाउनलोड करना ही है, तो इसके लिए कितना टाइम हमें चाहिए, कितने मिनट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो रेट है R,
और यहाँ जो टाइम है t, तो अगर रेट कम होगा तो जो टाइम है वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो 0.8 MB है, उसके लिए 1 मिनट चाहिए। ओके, सॉरी यहाँ पे ये रेट नहीं है, ये हमारा डेटा है। रेट और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, पर डेटा और टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही होंगे। कि हमें जो 0.8 MB डेटा अगर हमें डाउनलोड करना है तो 1 मिनट चाहिए, तो 4 MB डेटा अगर हमें डाउनलोड करना है तो कितने मिनट चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही रहेगा। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो x1 इज 0.8, y1 is equal to 1, x2 is 4, y2 is question mark. So to find y2 multiply 0.8 is equal to 4 multiply 1. Therefore y2 is equal to 4 divided by 0.8. So 4 divided by 8 multiply by 10. So answer will be 5 minutes. Okay, तो रेट कम हो रहा है तो टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है। ओके, और रेट अगर 2.5 MB था तो टाइम हमें सिर्फ 1.6 मिनट्स का लग रहा था। तो यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो जो t है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो रेट जब कम होगा तभी टाइम बढ़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि रेट अगर 0.8 MB पर मिनट हो रहा था तो टाइम हमें ज़्यादा लग रहा था। ओके, अगर रेट ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। हाउ डज द वैल्यू ऑफ t चेंज एज द वैल्यू ऑफ r इंक्रीज स्टेडीली। हाउ इज़ द पैटर्न ऑफ द चेंज रिलेटेड टू द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो r के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, तो हमने जैसे बताया कि r अगर इंक्रीज होगा तो t जो है हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का पैटर्न है। ओके, तो इस तरीके से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें क्या दिया है, लेमन्स वर बॉट एट ₹60 a dozen and sold at the rate of ₹40 per 10. Find the gain or loss %. सो यहाँ पर लेमन का प्राइस दिया है, जब खरीदे हैं तब 60 रुपीज़ अ डज़न। डज़न का मतलब होता है 12 पीस। ओके, वन डज़न इज इक्वल टू 12 पीसीस। तो उसका मतलब ये हुआ कि लेमन के जो 12 पीस है वो 60 रुपीज़ के है, तो एक पीस का कॉस्ट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 12 यानी कि 5 रुपीज़ ईच। कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 1 लेमन इज़ 5 रुपीज़। अब जब उसको सेल किया है तब 40 रुपीज़ पर 10 यानी कि 10 पीसीस जब सोल्ड किए तो 40 रुपीज़ मिला। तो एक पीस सोल्ड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 40 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू SP हमें मिलेगा 4 रुपीज़। अब यही दाम से अगर लेमन सारे बेचेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो CP है वो SP से ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का,
तो CP माइनस SP इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है एक लेमन के ऊपर। तो परसेंटेज ऑफ लॉस अगर हमें फाइंड करना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस जो हमने फाइंड किया है रुपीज़ में, उसे डिवाइड करेंगे CP से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। ओके, सो लॉस मिला 1 रुपीज़, CP है हमारा यहाँ पे 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, सो 5 मल्टीप्लाई 20, आंसर हमें मिलेगा 20% लॉस। ओके, तो अगर नींबू इस दाम से खरीदे और इस दाम से बेचेंगे तो 20% का लॉस हो सकता है भाई। ओके, तो बेचने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि या तो खरीदे थोड़े कम कीमत से या तो बेचे थोड़े ज़्यादा कीमत से, क्योंकि लॉस करना तो ठीक रहेगा नहीं किसी भी लिए, किसी भी पर्सन के लिए। नाउ अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। आगे देखते हैं कुछ और नए हमें प्रॉब्लम्स दिए हैं। उसको पहले हर बार जब भी हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सम्स दिए गए होंगे, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं। तो रीराइट द गिवन इक्वेशन इन योर ओन वर्ड्स। 30 men can reap a field in 17 days. If the field is to be reaped in 10 days, then how many men will be required? तो यहाँ पे हमें 30 आदमी अगर मिलके कोई खेत में काम करते हैं तो 17 डेज लगते हैं टू रीप दैट फील्ड। अगर यही काम हमें 10 दिन में ख़त्म करना है तो हमें कितने आदमी ज़्यादा चाहिए? ओके, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन विल बी रिक्वायर्ड। तो पहले कितने चाहिए 10 दिन में काम ख़त्म करने के लिए। तो ये वर्क एंड टाइम का हमारा यहाँ पे कंसेप्ट दिया है। वर्क एंड टाइम कंसेप्ट आर इनडायरेक्ट प्रपोजन इन हियर। अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा और नंबर ऑफ मैन कम हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे ऑपोजिट, अगर ज़्यादा दिन में काम ख़त्म करना है तो कम आदमी होंगे तो चलेगा, पर अगर हमें कम दिन में काम करना है तो ज़्यादा आदमी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 17 डेज लगते हैं 30 आदमी को, तो 10 दिन में यही काम ख़त्म करना है तो क्या होगा, तो हमें ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाट डू यू नो? तो वी नो दैट द गिवन क्वांटिटीज आर इन इनडायरेक्ट proposition। 30 men can reap the field in 17 days। प्लान स्ट्रेटजी जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे आपको दिया है। थिंक दैट 30 men are reaping a field in 17 days, so to reap the field in 10 days it means less number of days men required will be less or more? Obviously more। okay, number of days has reduced, so men to be employed will increase, therefore we will use indirect variation यानी कि indirect proportion। So find the difference between number of men required and number 30। तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वांटिटी है वो है नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ मैन जो है और नंबर ऑफ डेज जो है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 17 से 10 हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैन जो है 30 से बढ़ के कितने होने चाहिए, यहाँ पे x ले लिया है। हम इसे x1 y1 x2 y2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एज वी नो द नंबर ऑफ डेज हैज़ डिक्रीज, सो द नंबर ऑफ मैन विल इंक्रीज, हैंस वी विल यूज इनडायरेक्ट वेरिएशन। और आप ये भी लिख सकते हैं इनडायरेक्ट प्रपोजन। द गिवन क्वांटिटीज आर इन इनडायरेक्ट प्रपोजन। उसके बाद इक्वेशन है इनडायरेक्ट प्रपोजन का x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो वही इक्वेशन का यूज़ किया है। 30 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 10। आंसर हमें मिल रहा है 51 मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 10 डेज। यही काम करने
10 दिन में यही काम ख़त्म करने के लिए हमें 51 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तो ऑलरेडी 30 लोगों को तो काम पे लगाया ही था, और ज़्यादा हमें कितने चाहिए, तो 51 माइनस 30, आंसर इज 21 मैन। ओके, रिवाइज करते हैं। वेरीफाई आंसर बाय अडॉप्टिंग सम अनदर मेथड विच इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ डेज 17, नंबर ऑफ मैन 30, तो एक दिन में कितने चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 10 से। तो एक दिन में चाहिए कितने, तो एक दिन में द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 1 डे इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 17, एंड यहाँ पे हमें एक के बदले 10 आदमी मिल रहे हैं, तो उसके बाद डिवाइड बाय 10 करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा 51। वो तरीके से भी हमें सेम आंसर ही मिल रहा है। What will happen if the question is 17 men can reap a field in 17 days, then 10 men can reap a field in how many days? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है कि जो 30 आदमी थे उन्होंने 17 दिन लिए, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन who are doing the job will decrease, the number of days will increase. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, अगर आदमी कम होंगे तो काम ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। ओके, so 30 men can reap the field in 17 days. So 10 आदमियों को कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा y2। तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, it means 30 multiply 17 is equal to 10 multiply y2, therefore y2 is equal to 30 multiply 17 divided by 10, it's 51 days. ओके, तो आगे भी एक क्वेश्चन है, और इन द क्वेश्चन ऑफ मैन एंड वर्क वी ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ थिंक सम सिचुएशन रिलेटेड टू मैन वेयर डायरेक्ट वेरिएशन विल बी यूज। फॉर एग्जांपल 15 मैन कैन ट्रैवल in 3 cars, then find the minimum maximum number of cars required for 25 men and 38 men। तो कम आदमी होंगे तो कम कार्स चाहिए, ज़्यादा आदमी होंगे तो कार्स के अंदर बैठ तो नहीं सकते इतने ज़्यादा आदमी, तो हमें ज़्यादा कार चाहिए। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोजन हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ कार, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कार रिक्वायर्ड जो है वो भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रपोजन। ओके, x1 जो है वो है 15, तो y1 जो है नंबर ऑफ कार वो चाहिए 3, x2 जो है वो हो रहा है 25, तो y2 हमें कितना चाहिए, तो डायरेक्ट प्रपोजन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 जो है वो है 15, y1 जो है वो है 3, x2 जो है वो है 25, तो y2 क्या होगा, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 3 5 ज़ा 15, तो y2 जो है वो मिलेगा 25 अपॉन 5, आंसर हमें मिलेगा 5 कार्स चाहिए। ओके, क्लियर। उसी तरीके से
38 मैन है तो हमें कितनी कार्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। 15 के लिए 3 तो 38 के लिए कितने कार्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूछा गया फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम अंडर नंबर ऑफ कार्स, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y2 का आंसर जो है वो हमें डेसिमल पॉइंट में मिल रहा है, तो आधा कार तो हम ला नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एक कार जो है अगर डेसिमल पॉइंट का आंसर है तो जो हमें नंबर मिल रहा है उससे एक ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि आदमी रह नहीं जाना चाहिए। अगर कम कार लेंगे तो सारे के सारे जो वो कार में बैठने वाले हो बाकी के सारे आदमी रह जाएंगे किसी एक बंदे के लिए। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 7.6 कार्स। तो 7.6 कार्स यानी कि 7 कार्स तो चाहिए ही, उसके ऊपर 0.6 कार, तो 0.6 कार तो मिलता नहीं, उसके बदले एक पूरा कार ही मिलता है, तो वो हमें लेना है 8 कार्स चाहिए मिनिमम। ओके, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल सकता है थिंक एंड डिस्कस के जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसका। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे लॉजिक्स टॉपिक्स, सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ थिंक एंड डिस्कस के एग्जाम्पल्स। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज फॉर द गिवन यूनिट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोजन।